یسوع مسیح کے عظیم اور خوبصورت نام میں تمام حاضرین کو اور تمام ناظرین کو جو ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں ڈائریکٹ ٹی وی کو آج شب پیار بڑا سلام قبول ہو۔ ہمارے چینل کو دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی خدا کا کلام پہنچ سکے۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے زندگی بخش کلام کو کھولیے گا، اور آج ہم سلاطین کی دوسری کتاب اور اس کا 6واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے خدا کے زندگی بخش کلام کو سنیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم تلاوت کریں، میں نے آپ کو پچھلے سنڈے بتایا تھا کہ ہم اگلے سنڈے ایک نیا میسج آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں جس کا عنوان ہے روحانی آنکھیں کھول دے۔ کیا عنوان ہے؟ میرے پیچھے بولیے، روحانی آنکھیں کھول دے۔ اب آپ بولیں، کہیں اے خدا میری روحانی آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب کو سیکھ سکوں۔ آئیے میرے ساتھ پڑھیے گا خدا کے زندگی بخش کلام کو، اور بڑے دھیان سے، بڑی توجہ سے خدا کے زندگی بخش کلام کو سنیے گا۔ یہ سلاطین کی دوسری کتاب ہے، اس کا 6واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اس بات کے سبب سے شاہ ارام کا دل نہایت بے چین ہوا، اور اس نے اپنے خادموں کو بلا کر ان سے کہا، کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ ہم میں سے کون شاہ اسرائیل کی طرف ہے؟ تب اس کے خادموں میں سے ایک نے کہا، نہیں اے میرے مالک، اے بادشاہ، بلکہ الیشا جو اسرائیل میں نبی ہے تیری ان باتوں کو جو تو اپنی خلوت گاہ میں کہتا ہے شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے۔ یہاں پر شاہ ارام ایک بادشاہ ہے جو اپنے ملازموں کی وجہ سے بڑا دکھی ہے، بڑا غمگین ہے، بڑا پریشان ہے، اور ان کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہے کہ جو میٹنگ ہم یہاں پر پرسنل کرتے ہیں، تم میں سے کوئی تو ایسا غدار ہے کہ جو جا کر میرے دشمن کو میری یہ ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ جب بھی میں اپنے دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے پلان بناتا ہوں تو میرا دشمن پہلے ہی چکنا ہو جاتا ہے، میں فتح نہیں پاتا، میں شکست ہوتا ہوں۔ وہ بڑا ہی غمگین ہے، لیکن اس کے ملازموں نے کہا کہ مالک ایسی بات نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بے وفا نہیں ہے، نہ ہی کوئی غدار ہے، بلکہ اسرائیل میں ایک ایسا نبی ہے جس کا نام الیشا ہے، اور وہ نبوت کرتا ہے، وہ غیبین ہے، خدا کا روح اس کے اندر ہے، کہ جو میٹنگ ہم یہاں پر پرسنل کرتے ہیں خدا کا روح اس کو بتا دیتا ہے، اور وہ شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کے اندر خدا کا روح تھا، اور خدا نے بتا دیا کہ حنانیہ اور سفیرہ جو ہے انہوں نے کتنے کی زمین بیچی ہے، لیکن اس میں سے کچھ حصہ انہوں نے رکھ لیا ہے اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھا ہے۔ رتبس نے اس کو بتا دیا کہ حنانیہ اور سفیرہ تیرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے اس نے کہا کہ تم نے رتبس سے کیوں جھوٹ بولا؟ آگے لکھا ہوا ہے، اس نے جا کر کہا، دیکھو وہ کہاں ہے تاکہ میں اسے پکڑواؤں، اور اسے یہ بتایا گیا کہ وہ 2-3 میں ہے۔ تب اس نے وہاں گھوڑوں اور رتھوں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ کیا، انہوں نے راتوں رات آ کر اس شہر کو گھیر لیا، اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لشکر گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چگرد ہے۔ اس خادم نے جا کر اس سے کہا، ہائے میری مالک، ہم کیا کریں؟ اس نے جواب دیا، خوف نہ کر،
यहां पर एक अलीशा का खादम है जो सुबह सवेरे उठा है और उसने जब देखा तो दुश्मन का जो रथ था, दुश्मन के जो घोड़े थे, दुश्मन के जो फौजें थी, उन सब ने उस इलाके को, अलीशा को घेर लिया था कि उसको पकड़ें और उसको मार दें, उसको कत्ल कर दें। जब वो सुबह सवेरे उठा, उसने देखा चारों तरफ घेरा डाला हुआ था और वो खादम जिसकी आंखें अभी खुली नहीं थी, वो खौफजदा हो गया। इसका मतलब है कि जिन लोगों की रूहानी आंखें अभी तक बंद हैं, वो छोटी सी मुसीबत की वजह से भी खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि हमारे साथ कौन है। वो नहीं जानते कि कलाम में ये लिखा है, तेरी दाहिनी तरफ 10,000 गिर जाएंगे और तेरी बाईं तरफ 1,000 गिर जाएंगे, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएंगे। आमीन। हम देखते हैं कलाम खुदा में लिखा है कि सैमसन जो है वो अकेला एक तरफ था और गधे के चमड़े की एक हड्डी लेकर उसने 1,000 आदमी को अकेले ने मार दिया। वजह क्या है? इसलिए कि उसके चुगन खुदा के फरिश्तगान की भाड़ है, उसके साथ खुदा का रूह है, रब्बुल फवाज उसके साथ है। इसी तरह हम देखते हैं दाऊद जो है उसकी आंखें खुली हुई थी और वह जानता था, वो जाति जुलियत से खौफजदा नहीं हुआ। वो जानता था कि मेरा खुदा जो मेरे अंदर रहता है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। यूहन्ना का पहला खत चौथा बाब चौथी आयत में लिखा है ऐ बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आगे हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। हालेलुया। और देखें दाऊद ने जाति जुलियत को मार दिया क्योंकि वो जानता था मैं अकेला नहीं, मेरा खुदा मेरे साथ है। और उसने कहा मैं रब्बुल फवाद के नाम से आता हूं। वो डरा नहीं, वो खौफजदा नहीं हुआ। इस खादम की आंखें जो हैं वो बंद हैं, इसलिए ये खौफजदा हो गया और कहने लगा हाय मेरे मालिक, हम तो मारे जाएंगे। ये क्या हुआ और हम क्या करेंगे? अब ये तो बहुत बड़ा लश्कर है जिन्होंने हमें घेर लिया है, वो तो हमें पकड़ लेंगे और वो मार देंगे। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है अलीशा ने उसे कहा कि तू खौफ ना कर। और आज आपके लिए ये मैसेज है कि तू खौफ ना कर। 365 दफा ये लफ्ज आया है। 365 दिन होते हैं एक साल में, 12 महीने होते हैं और खुदा हर रोज आपको कहता है खौफ ना कर। जब मुसीबत के दिन तू बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है, हौसला रख, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा, उसका वादा है सारे तुझे छोड़ जाएंगे, माँ बाप भी तुझे छोड़ जाएंगे, रिश्तेदार भी तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं हर चीज तुझे ना छोड़ूंगा, बल्कि अब से लेकर हमेशा तक, दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। इसलिए तू क्या कर, खौफ ना कर। यहां पर लिखा है उसने कहा खौफ ना कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। इसलिए तू खौफ ना कर। वो हमारे नजदीक भी नहीं आने पाएंगे, हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से कहीं ज्यादा हैं। और सुनिए आगे क्या लिखा है। लिखा है और अलीशा ने दुआ की और कहा ऐ खुदावंद उसकी आंखें खोल दे। आमीन। आंखें दुआ करने से खुलती हैं। जब तक आप अपने लिए दुआ नहीं करेंगे या कोई खादम आपके लिए दुआ नहीं करेगा, तब तक आपकी आंखें नहीं खुल सकती। जितना मर्जी, कई दफा मैंने चेक किया है कि कई लोगों को जितना मर्जी कलाम सुना ले, जितना मर्जी टाइम दे ले, लेकिन उनको कलाम की समझ नहीं आती। वजह क्या है? उनके ज़हन बंद है, उनकी ज़हन की आंखें बंद हैं, उनके दिल की आंखें बंद हैं, उनकी रूहानी आंखें बंद हैं। और ये किसने बंद की है? यूहन्ना की इंजील में लिखा है इस जहान के खुदा ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया और उनके दिमागों पर पर्दा डाल दिया, ताकि वो देखते हुए ना देखें और जानते हुए ना जाने और समझते हुए ना समझे। ऐसा ना हो कि वो दिल से मान लाए, आंखों से देखें और मैं उनको शिफा बख्शूं। शागिर्दों ने एक दफा कहा यीशु मसीह को कि तू तमसीलों में कलाम क्यों करता है? यीशु ने कहा तुम्हारे ज़हन खोले गए हैं, तुम्हारे ज़हन की रूहानी आंखें खोली गई हैं।
तुम्हारे दिल खोले गए हैं, लेकिन ये लोग जो हैं इनके दिल, इनकी ज़हन, इनकी सोचें, सब कुछ, इनकी आंखें बंद हैं। इसलिए मैं इनसे तमसीलों में कलाम करता हूँ। आगे लिखा हुआ है, और एलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि एलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आपसी घोड़ों और रथों से भरा है। जब उसकी आंखें खुल गई तो फिर उसने ये देखा कि एलीशा के चिगिर्दों उस रथ से, उन घोड़ों से, उस लश्कर से ज्यादा खुदा के फरिश्ते उसके चौगिर्द हैं। और ये ज़बूर नंबर 34 में लिखा हुआ है, मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसके फरिश्ते खेमासन होते हैं और उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शते हैं। आप जानते हैं जब सदूम और अमोरा को खुदा ने तबाह करना था, दो फरिश्ते वहां पर आए थे। एक खुदावंद था, अब्राहम के घर में खाना खाया और खुदावंद जो है वो अब्राहम से बातें करना शुरू हो गया। दो फरिश्ते सदूम और अमोरा को चले गए और लोग जो जिनकी आंखें बंद थी, फरिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं ना, जिनकी आंखें बंद थी वो क्या कहने लगे, ये मेहमान हमें दे दे, हम इनसे गुनाह करना चाहते हैं। लूत ने कहा, मेरी दो जवान बेटियां हैं वो ले लो, पर मैं अपने मेहमान नहीं दूंगा। लूत की आंखें खुली हुई थी, वो जानता था कि ये खुदा के फरिश्ते हैं, लेकिन वो लोग बाज ना आए। उन्होंने फाटक तोड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने उसे घर का दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, उन फरिश्तों ने लूत से कहा, अपनी बीवी को, अपनी बेटियों को, अपने दमादों को, यहाँ पर जितने भी तेरे अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, उनको ले और यहाँ से निकल जाओ और पीछे मुड़कर ना देखना। और जो ही फरिश्तों ने दरवाजा खोला तो वो सारे लोग अंधे हो गए। और फिर उसके बाद सदूम और अमोरा पर आग नाज़िल हुई और सब लोगों को दो फरिश्तों ने तबाह बर्बाद कर दिया। जब यीशु को पकड़ने के लिए आए तो पतरस ने सरदार काहन के नौकर का कान उड़ा दिया। यीशु ने कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, और कान पकड़कर जोड़ दिया और कहा, अगर मैं अभी हुक्म दूं तो 12 तुमन फरिश्ते अभी आ जाएं और मेरे दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर दें, लेकिन मैं खुशी के साथ अपनी जान देता हूं, ना कि कोई जबरदस्ती मुझसे मेरी जान छीनता है। तो खुदा के फरिश्ते चारों तरफ हमारे होते हैं। आमीन। एक तुमन में 28,000 फरिश्ते होते हैं, ठीक है, और 12 तुमन में कितने फरिश्ते होंगे, हजारों लाखों की तादाद में वो फरिश्ते। यीशु ने कहा, मैं भी हुक्म दूं तो आ सकते हैं मेरी हिफाजत करने के लिए। और आप जानते हैं हम वो ज़बूर गाते भी हैं, एक ज़बूर हम गाते हैं ना, खुदा के फरिश्ते जो हैं वो आपको अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि आपके पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। हालेलुया। सो खुदा के फरिश्ते आपके चारों तरफ है, आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। आज अगर कोई शख्स खौफजदा है तो समझ लें कि आज तक उसकी आंखें बंद है। अगर कोई शख्स डरपोक है, बुज़दिल है, तो समझ लें उसकी आंखें बंद है। लेकिन जो लोग डरते नहीं है ना, समझ लें उनके चारों तरफ खुदा के फरिश्ते उस मुकाशरे को जानते हैं कि हमारे साथ वाले उनसे ज्यादा हैं और जोर आवर है। जो हम में रहता है वो उससे जोर आवर है जो दुनिया में है। आमीन। जब से मैंने खिदमत शुरू की है, बड़े बड़े केसेस पर दुआ की है, बड़े बड़े जादूगरों के साथ भी मुकाबला हुआ, बदरूहों के साथ भी मुकाबला हुआ, लेकिन आज तक इस कलाम की वजह से मेरा दिल कायम और दायम है और मेरा ईमान मजबूत है कि यीशु मसीह ने फरमाया है, तुमको हरगिज़ किसी भी चीज से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस बात से रूहानी आंखें उसने खोली हैं कि मैं तेरे साथ हूं। सब लोग तुझे छोड़ जाएंगे लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उसकी भार हमें हर रोज मांगनी चाहिए। जैसे अय्यूब के चिगिर्द उसकी भार थी और जब तक उसकी भार रही शैतान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। अगर आप भी हर रोज दुआ में खुदा के फरिश्तों की भार, रूह की आग की भार, अच्छी फसीह अपने चिगिर्द मांगेंगे, यीशु मसीह के खून की भार आप अपने ऊपर, अपने खानदान पर, अपने घराने पर, अपनी दीवारों पर, चौकों पर, एक एक चीज पर आप यीशु के खून की
भाग लगाएंगे और खुदा का कभी हाथ आपके ऊपर मांगेंगे, तो फिर इब्लीस आपकी किसी भी चीज को टच नहीं करने पाएगा। पर आप किसी को ये नहीं कहेंगे वो साढ़े ते किसी ने कुछ कर देता ता करके साड़ी यह हालत होगी, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आमीन, क्योंकि आपका खुदा और मेरा खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। 15वीं आयत में लिखा है, बल्कि 16वीं आयत में, उसने जवाब दिया, खौफ न कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। और अलीशा ने दुआ की और कहा, हे खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि एलीशा के गिरदागिर्द का पहाड़ आदसी घोड़ों और रथों से भरा है। और जब वो उसकी तरफ आने लगे तो एलीशा ने खुदावंद से दुआ की और कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, इन लोगों को अंधा कर दे। कभी जिंदगी में आप अकेले हो और दुश्मन आपको घेर ले, उस वक्त आपने ये वाली दुआ करनी है। हर रोज नहीं करनी, हर रोज ये करनी कि रूहानी आंखें खोल दे। कभी दुश्मन आपको घेर ले तो फिर उस वक्त ये दुआ करें, जैसे एलीशा ने दुआ की, इनकी आंखों को अंधा कर दे। जैसे फरिश्तों ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया और वो टटोलते रहे लेकिन उनको कुछ भी ना मिला। लेकिन हर रोज ये दुआ करें, खुदावंद मेरे खानदान की आंखों को खोल दे ताकि हम तेरी शरीयत को जान सके, हम तेरे कलाम को समझ सकें, हम सच्चाई को समझ सकें, हम हर एक रूह का यकीन ना करें, हमें रूहों के इम्तियाज की नेमत अता कर। और आगे लिखा है, और मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि इन लोगों को अंधा कर दे। तो उसने जैसा एलीशा ने कहा था उनको अंधा कर दिया। क्या कर दिया? अंधा कर दिया। फिर एलीशा ने उनसे कहा, ये वो रास्ता नहीं और ये वो शहर है ना, ये वो शहर है, तुम मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको उस शख्स के पास पहुंचा दूंगा जिसकी तुम तलाश करते हो। और वो उनको सामरिया को ले गया। और जब वो सामरिया में पहुंचे तो एलीशा ने कहा, ऐ खुदावंद इन लोगों की आंखें खोल दे। देखें, यीशु मसीह ने हमें बांधने का और खोलने का इख्तियार दिया है। मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत के ऊपर गालिब हो, और जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वह आसमान पर बंध जाएगा और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वह आसमान पर खुल जाएगा। उसने दुआ की, आंखें बंद हो गई। फिर उसने दुआ की, जब वहां पर पहुंच गए तो उनकी आंखें खुल गई। अब आगे सुनिएगा, आगे एलीशा का रवैया क्या है, ध्यान से जरा सुनिएगा। एलीशा का रवैया क्या है, और यही रवैया यही मिजाज दाऊद का भी था। जब उसका ससुर उसको कत्ल करने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था तो एक गार में दाऊद जाकर छुप गया और वहां पर खुदा ने दाऊद के हाथ में सौल को कर दिया। वो सो गया और उसने उसका जुब्बा भी काट दिया, उसकी सराही भी पानी वाली उठा ली और खुदा ने उसको उसके हाथ में कर दिया। और मुलाजिम उसके जो साथ थे वो कहने लगे, इसको मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। उसने कहा, मैं कौन बोलता हूं कि खुदा के मुंह पर हाथ उठाऊं। उसने अपने दुश्मन को मारा नहीं है। हालेलुया। तो हमें क्या कलाम कहता है, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। जब तुम दुआ करते हो तो उनके सर पर आग के गारों का ढेर लगा देते हो। जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। और आगे लिखा है, तब खुदावंद ने उनकी आंखें खोल दी और उन्होंने जो निगाह की तो क्या देखा कि सामरिया के अंदर है। और शाहिद इस्राएल ने उनको देखकर एलीशा से कहा, ऐ मेरे बाप, क्या मैं उनको मार लूं? मैं उनको मार लूं? उसने जवाब दिया, तू उनको ना मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू अपनी तलवार और कमान से असीर कर देता है? तू उनके आगे रोटी और पानी रख ताकि वो खाएं और पिएं और अपने आका के पास जाएं। अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, और अगर प्यासा हो तो उसको पानी पिला। ये देखें, यहां पर सीखें खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को। और आगे लिखा है, तो उसने उनके लिए बहुत सा खाना तैयार किया, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे ना, तो उन्होंने बहुत सा खाना तैयार किया। और जब वो खा पी चुके तो उसने उनको रुखसत किया और वो अपने आका के पास चले गए और आराम के जत्थे इस्राएल के मुल्क में फिर ना आए।
जब इंसान की रवशें खुदा को पसंद आ जाती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। जब खुदा को अलीशा का चाल चलन, उसका रवैया, उसकी रवशें पसंद आई कि उसने अपने दुश्मनों को नहीं मारा, हरामोंदे हो चुके थे, उनको मार भी सकता था लेकिन उसने नहीं मारा, उसने उनको माफ कर दिया बल्कि उनकी खिदमत की। और जाकर ये सारा माजरा जब उन्होंने अपने मालिक को, अपने बादशाह को सुनाया होगा तो इनकी जिंदगियां भी तब्दील हुई होंगी और उस बंदे की भी जिंदगी तब्दील हो गई होगी और दोबारा वापस ये कभी अलीशा को पकड़ने के लिए या शाह इस्राएल में जंग करने के लिए कभी वापस नहीं आए। आमीन। तो जब हम इस तरह से ऐसा मिजाज रखे कि जैसा मसीह यीशु का भी था, शागिर्दों का भी था, हम भी रसूलों और नबियों के ऊपर रखे गए हैं जिसके कोने के सिरे का पत्थर यीशु मसीह है और हम भी उसी पर हम तामीर किए जाते हैं, तो फिर खुदा हमारे इस चाल चलन से खुश होगा। ज़बूर नंबर 119 उसकी 18वीं आयत में लिखा है, दाऊद कहता है, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरे अजायब को देख सकूं। दुआ वो करता है अपने लिए कि मेरी आंखें खोल दे। कौन सी आंखें खोल दे? रूहानी आंखें। देखें, आज मैं आपको गहरी बात बताने वाला हूं। जब बच्चा जिस्मानी पैदाइश लेता है तो वो दुनिया में अपनी आंखें खोलता है। हम सब ने जिस्मानी पैदाइश ली, हमने दुनिया में अपनी आंखें खोली और हम दुनिया को देख रहे हैं क्योंकि खुदा ने हमारी आंखें जिस्मानी तौर पर खोली हैं। इसी तरह यूहन्ना की 3 बाब 5वीं और 6वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने एक निकोदेमुस से कहा कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, यदि नई पैदाइश का तजुर्बा वो ना करे, रूहानी तौर पर वो अंधा है और अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। अगर गिराएगा तो वो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। और वहां पर लिखा है कि जो कोई शख्स नए से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। इसका मतलब है कि जो लोग रूहानी तौर पर अंधे हैं वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकते। तो इसलिए खुदा शिकवा करता है कि ये उम्मत होंठों से मेरी ताज़ीम करती है पर इनके दिल मुझसे दूर हैं और ये बेफायदा मेरी प्रस्तुत करते हैं क्योंकि इंसानी हकाम की तालीम देते हैं और मेरे हुक्मों को बिल्कुल रद्द कर देते हैं। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, इफ्सियों का पहला खत, इफ्सियों का पहला खत, इफ्सियों का खत है और उसका पहला बाब, इफ्सियों का खत उसका पहला बाब है और उसकी 15वीं आयत से हम पढ़ेंगे। पहला बाब 15वीं आयत, इस बात से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु पर है और सब मुकद्दसों पर ज़ाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बात नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद करता हूं। पौलुस अपनी कलीसिया को अपनी दुआ में याद करता है कि खुदावंद को माली, जिस्मानी, रूहानी बरकत से मालामाल कर, फतह से बढ़कर गलबा दे, इब्लीस की आज़माइशों पर गालिब आने की तौफीक अता कर। और आगे सुनिएगा एक बड़ी खास बात, दिल की आंखें खोल दे। आमीन। किसी भी साइंसदान ने ये नहीं साबित किया कि दिल की भी अखा होंगी, लेकिन कलाम में कहता है दिल की आंखें खोल दे। प्रेज़ गॉड। सुनिएगा जरा आगे लिखा हुआ है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो बाप, जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे और तुम्हारी दिल की आंखें रोशन हो जाएं। यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कोई शख्स रोशनी में चलता है, नूर में चलता है, वो ठोकर नहीं खाता, लेकिन जो अंधेरे में चलता है वो ठोकर खाता है। आज बहुत से लोग अंधेरे में चल रहे हैं। अमूस की किताब में लिखा है, मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं। इल्म का मतलब रोशनी है और इल्म ना होने की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से, सच्चाई से वाकफियत ना होने की वजह से बहुत सारे लोग अंधेरे में हैं, तारीकी में हैं। इसलिए ऐसे लोगों को हर रोज अपने लिए दुआ करने की जरूरत है कि खुदा उनकी रूहानी आंखें खोल दे और दिल की आंखें भी खोल दे ताकि वो रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड।
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی آنکھیں جو ہیں، کلام خدا میں پیدائش کی کتاب 21واں باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، تب خداوند نے ہاجرہ کی آنکھیں کھولی تاکہ وہ پانی کا حوض کھود سکے۔ جب تک خدا ہماری آنکھیں نہیں نہ کھولتا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آمین۔ خدا کھولے گا آنکھیں تو پھر ہم کچھ کر سکتے ہیں، خدا کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خدا کا بندہ سیمول جو ہے وہ اپنی کتاب میں کہتا ہے، پہلی کتاب میں، خداوند میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تجھے پہچان سکوں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کو پہچانتے نہیں ہیں۔ کون پہچانتے ہیں؟ جنہوں نے اپنا دل اس کے ساتھ لگایا، اس لیے اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، عزت بخشوں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ نام کون پہچانتا ہے؟ جس نے اپنا دل خداوند کے ساتھ لگایا ہے، جس کا دل کھل چکا ہے، جس کا ذہن کھل چکا ہے۔ اور یسوع مسیح نے ہمیں یہ تسلی دینے کے لیے ایک اور بات کہی ہے، اس نے کہا تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں، میں اب سے لے کر ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح اعمال کی کتاب کے 26ویں باب میں پالوس نے جو ہے وہ ایک کسی کے لیے دعا کی کہ اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ یہ کلام کو سیکھ سکے اور سمجھ سکے۔ آج سے دعا کرنا شروع کریں، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، خادموں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، تاکہ خدا ان کی آنکھوں کو کھول دے تاکہ وہ کبھی بھی خوف زدہ نہ ہوں۔ وہ اس کلام کو اپنے دل میں رکھے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا خدا زور آور خدا ہے۔ آمین۔ سو گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے۔